वो जब मैं पढ़ रहा था ना, वो पढ़ते समय, वो पढ़ने के बाद में, वो आर्टिकल पढ़ने के बाद में मेरी आवाज़ काँपने लग गई थी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि द कश्मीर फाइल्स very captivating, extremely good work. It's an amazing movie. बहुत दुख. If it doesn't shake someone to his core, I don't know what would it. Just mind blowing. Most important to the younger generation to see all over the world. It's a great movie, great story, and I can't wait to share more about it and tell my friends about it. Very well made movie. Great movie and hashtag Kashmir Files. Really emotional, breathtaking, and it has come just at the right time when the youth need it. This brought more a spiritual experience. It's a movie about the truth. Heart-wrenching. Sorrow, anguish, sad that Like it hits you right where it hurts and definitely made a mark on me. Movie was as if I was watching myself. I really don't know. I'm still numb. very well done. Extremely well done. It was unexpected, but I found it really beautiful. Bold film, truthful. It's a very good narrative. Overwhelming. Totally touched. This is so beautiful, I can't tell you. Without you, probably would have died without knowing this part of the history. Amazing, unbelievable. बहुत अच्छा लगा. The human stories that you were portraying, that was amazing. It just brought, I'm still having palpitations, believe me. बहुत रोए हैं. It's like lots of love, lots of blessings. This is the epic. It should go for Oscar and win. Ordinary film, very, very vivid. Eye-opening. I was stunned. Oh, it was really good. The actors were really great. The movie is really awesome. Awesome movie. Great movie. It was amazing. The movie is excellent. As good as you'll see it anywhere in Hollywood. It's heart-touching. The movie was amazing. Movie was amazing. It was a very nice eye-opener. It was very touching. It was very intense and transparent. It was a great movie. Very intense and emotional. It's very moving, touching. A great movie. Very, very real. Every character was so intense. Film is excellent. Amazing. Amazing. A really good story. From young to old, everybody can relate to this movie. This is a story that needs to be told. I wasn't aware of it. I cried because of that. I had tears in my eyes. It just touched your heart. The story needed to be told. Please. Kashmir Files was such a heartbreaking movie to watch. It hurts to see so many innocent victims getting killed over their differences in religion. I couldn't stop myself from crying when I was watching this movie. I can't believe the Kashmir Pandit genocide was kept in silence for so long, and there's no mention of it in the history book. Thanks to all the cast and crew who did an amazing job of recreating the events to show the world the truth. And I just pray to all the victims and their family to find peace. And I would definitely recommend it to everyone to please go and watch it once it comes out to the theater. And we will do whatever it takes. Watching the movie, I thought it was very well done. It was
definitely one of the most upsetting movies I've ever seen, but I think that made it even more excellent that it was this true story. And one thing, after having seen the movie a few days ago, kind of makes me think of how the world experienced this happen, but yet there's not a lot of history on it. I myself even felt guilty after watching it, thinking how could something so terrible have happened, and I don't know about it, that this isn't something that I've learned about before when we've learned about all these terrible things that have happened to other groups, but why was this something that was so excluded from our learning? Overall, it was the work that went into making the movie was definitely super inspiring, because I'm sure that it was personally difficult, the emotional difficulty of putting blood, sweat, and tears into making this film. But I definitely think it's really inspiring having the care and the dedication to get something done in the face of how difficult it would be. And I'm definitely going to do all I can. I 100% support the movie. I'm going to see it again when it comes out, let my friends and family know that they should also see it. And thank you again for your work putting this important message out here and teaching the world about this history. I want to thank Vivek ji and Pallavi ji. That's it. All I can say. It just killed me. It touched my heart. I just cannot bear anything. When I saw this mayhem happening, I didn't cry. Our people had to leave within the night. I didn't cry. When I saw the plight of our community and everybody's silence, I didn't cry. I was helpless. But today I did cry. I had heard these stories for many, many years, and now suddenly to see it on the screen was again emotional. I want to commend you because this was beyond awareness. It's an impact that you're going to be making on generations to come. The people who really made this happen, they should be punished so that it never happens ever again. The actors, they've done a marvelous job. Whole world should see the movie. It brought tears to my eyes. Starting from the end, I was totally crying. I was scared at times. It was very graphic. We had sweat in our hands. Gut-wrenching, Oscar-worthy, and must-watch. So grateful that our story is being told. I'm from Laos, but seeing it, it's just got me shaken up. Definitely, I'll say breathtaking, inspirational towards the end, just seeing that there's a hope for humanity. Take care of yourself because you will have many more enemies after this. I have not seen such a film in my life till now. Made me think how this genocide happened in Kashmir. I did not know about it. Much powerful, much greater than Schindler's List. Very impactful. I hope that this film continues to be brought up, and I do plan on seeing it again. But it's all of our jobs to help you to get that messaging out. Till the message goes across to every child in every village in India and in the world. ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी करीब 20 दिन पहले मैंने विवेक अग्निहोत्री जी की द कश्मीर फाइल्स फिल्म के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने फिल्म के बारे में काफ़ी सारे अपडेट्स दिए थे, फिल्म कब रिलीज़ होने वाली है, साथ में ही पिछले 20 दिनों से अमेरिका में जो अलग अलग जगहों पर 15 शहरों में जो फिल्म की प्री रिलीज स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसके बाद अभी पिछले 2 दिनों से विवेक अग्निहोत्री जी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के 2 मोशन पोस्टर्स शेयर किए हैं, रिलीज़ किए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से। एक पात्र का नाम है पुष्कर नाथ पंडित, जो कैरेक्टर अनुपम खेर जी ने प्ले किया है, और दूसरे पात्र का नाम है ब्रह्म भट्ट, जो पात्र मिथुन चक्रवर्ती जी ने प्ले किया है। हम फिल्म के बारे में और दूसरी कुछ जानकारी मैं आपको दूं, उसके पहले ये 2 मोशन पोस्टर्स आप देखिए। कैसी विडम्बना है, कश्मीर चल रहा है। कश्मीर को लोग जन्नत मानते हैं, और इस जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले भी जिहाद इसलिए करते हैं कि उन्हें जन्नत मिले। जहां शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा। जहां शंकराचार्य ने तप किया, वो कश्मीर हमारा। जहां पंचतंत्र लिखा गया, वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में?
दोस्तों अभी मुझे इन मोशन पोस्टर्स पर वीडियो बनाना था, तो मैंने जस्ट अभी ये वीडियो बनाने से पहले गूगल पर फिल्म के बारे में सर्च किया। ऐसे ही मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह देख रहा था, तो उसमें से एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और उसमें उन्होंने फिल्म की जो कहानी है उसे रिवील कर दिया है। शायद उन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग देखी होगी या क्या कारण है मुझे पता नहीं, पर उन्होंने थोड़ी सी कहानी को उस आर्टिकल में रिवील किया था। मैं आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं हृदय से चाहता हूँ कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर में देखने के लिए जाए। पर उस आर्टिकल की वो थोड़ी सी स्टोरी जो मैंने पढ़ी, तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जब मैं पढ़ रहा था ना, वो पढ़ते समय, वो पढ़ने के बाद में, वो आर्टिकल पढ़ने के बाद में मेरी आवाज़ काँपने लग गई थी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि द कश्मीर फाइल्स भारतीय फिल्म इतिहास की एक ऐसी फिल्म होने वाली है जो इतिहास रचेगी। मतलब ये एक नया माइलस्टोन साबित होगी ये फिल्म। आज तक की भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बोल्ड और सबसे निडर फिल्म ये होने वाली है, और इसलिए मैं और ज़्यादा हृदय से इस फिल्म को प्रमोट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 26 जनवरी को जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होगी, गणतंत्र दिवस पर, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जाए। हाउसफुल रहे शोज़, ताकि धीरे धीरे आने वाले हर एक दिन के साथ में इस फिल्म के शोज़ बढ़ते जाए। हालांकि पृथ्वीराज और दूसरी तरफ अटैक है, मराठी फिल्म पावनखिंड भी है, और भी काफ़ी सारी, मॉर्बियस रिलीज़ हो रही है, हॉलीवुड की बड़ी फिल्म। उसके एक हफ्ते पहले ही राधेश्याम है, RRR को हालांकि तब तक काफ़ी दिन हो चुके होंगे। तो काफ़ी सारी बड़ी फिल्में उस समय एक साथ रिलीज़ हो रही है। पर फिर भी वर्ड ऑफ माउथ और जिस प्रकार से फिल्म को रिस्पॉन्स मिलता है दर्शकों से, उसके आधार पर ही फिल्म के शोज़ आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं हृदय से चाहता हूँ कि इस फिल्म को आप अवश्य अपने पूरे परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में इस फिल्म को देखने के लिए जाइए। अपने मित्र परिवार, अपने सगे संबंधियों को भी अधिक से अधिक इस फिल्म के बारे में बताइए। देखिए, कश्मीर में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ 1990 में, उससे पहले भी कई बार ये पूरा इतिहास है। मुझे पूरा विश्वास है कि फिल्म में उस पूरे इतिहास के बारे में बताया गया होगा। पर 1990 में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, लाखों लाखों हिंदुओं का नरसंहार, पलायन, हत्या, लूट, बलात्कार जो वहाँ पर हुए, और जो हम काफ़ी सारी जो सुनते हैं कि 2-2, 3-3 महीनों के बच्चों को तक नहीं छोड़ा गया था आतंकवादियों के द्वारा। जो पत्नी थी, उसे पति के खून में पूरे सने हुए चावल ज़बरदस्ती खिलाए गए थे। जो ये सारी बातें फिल्म में दिखाई गई है, जो मैंने उस आर्टिकल में पढ़ा। मुझे तो अभी से ऐसा हो रहा है कि कैसे देख पाऊंगा मैं स्क्रीन पर हाँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस फिल्म के माध्यम से पूरे विश्व को इस इतिहास के बारे में पता चलेगा। देखिए, जब भी हम जेनोसाइड ये शब्द सुनते हैं, सबसे पहले हमारे सामने कौन सा नाम आता है? जेनोसाइड, ये वर्ड मैंने यूज़ किया। अब सबसे पहले आपकी आंखों के सामने क्या आया? ज्यूज़, यहूदी, ये शब्द सबसे पहले हमारे सामने आता है जब भी हम जेनोसाइड ये नाम सुनते हैं। पर यहूदियों से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा नरसंहार, जेनोसाइड, हिंदुओं का हुआ है पिछले 1000 वर्षों से। जो विदेशी आक्रांता भारत में आए, उन्होंने जो यहाँ पर आक्रमण किए, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को जो उन्होंने नष्ट किया, मंदिरों को जो तोड़ा, जो देवी देवताओं की मूर्तियों को उन्होंने जो तोड़ा, बस इसलिए क्योंकि हम मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजकों के प्रति उनके मन में जो घृणा थी, जो अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार पिछले 1000 वर्षों से हुए हैं, जो ज़बरदस्ती जो धर्मांतरण आदि हुआ है अलग अलग विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, ये पूरे 1000 वर्षों का इतिहास ऐसा है जिसमें मतलब हमें ये बताया जाता है कि यहूदियों का नरसंहार पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हुआ। पर सच्चाई ये है कि पूरे विश्व में किसी समाज का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है तो वो हिंदू समाज का हुआ है, हिंदुओं का हुआ है। पर सच्ची विडंबना यह है कि इसके बारे में हमें कभी पढ़ाया तक नहीं जाता। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। जिन विदेशी आक्रांताओं ने ये नरसंहार किया, उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का भारत में ही महिमा मंडन किया जाता है। और इस जेनोसाइड के बारे में अगर कोई बात करता है तो उसे सांप्रदायिक कह दिया जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, आप स्वयं सोचिए दोस्तों। पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस फिल्म के माध्यम से कहीं से तो एक शुरुआत होगी, ताकि इसके बारे में लोग बोलना शुरू करें। और इससे भी बड़ी विडंबना क्या है पता है दोस्तों? 1990 में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, लाखों लाखों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और पलायन हुआ, पर उसके बाद से बॉलीवुड के माध्यम से किस प्रकार से कश्मीर को दिखाया गया, आप ज़रा देखिए। हमें कई सारी कश्मीर पर फिल्में बनी हुई है पिछले 3 दशकों में, पर इस कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को कहीं पर भी दिखाया नहीं गया। उल्टा कश्मीर में आर्मी को ही अत्याचारी दिखाने वाली फिल्में बनी हुई है। उनको कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। हमारे देश की जो लेफ्टिस्ट है, पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम है, तथाकथित लिबरल्स है, उन सब ने उन फिल्मों को वो सर पर लेकर नाचे हैं, क्योंकि उसमें आर्मी को ही कश्मीर में अत्याचार करने वाला दिखाया है।
एक प्रकार से आतंकवाद को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है। पत्थरबाजों को तक जस्टिफाई करने वाली फिल्में, वेब सीरीज बनी हुई है पिछले 3 दशकों में। मतलब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार दिखाना तो बहुत दूर की बात है, पर आतंकवाद को ही जस्टिफाई करने वाली, पत्थरबाजों को ही जस्टिफाई करने वाली, हमारी भारतीय सेना को ही अत्याचारी बताने वाली कई सारी फिल्में और वेब सीरीज पिछले 3 दशकों में हमारे ही देश की फिल्म इंडस्ट्री ने बनाई हुई है, बॉलीवुड ने बनाई हुई है। ये सबसे बड़ी विडंबना है और इसीलिए इस फिल्म का सफल होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और दोस्तों, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारे देश का जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, तथाकथित लिबरल्स है, वे इस फिल्म को सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात, इसे प्रोपेगेंडा कहकर इसके विरुद्ध जितना हो सके निगेटिव वो कैंपेन चलाएंगे। इस फिल्म के जो मेकर्स हैं, उन्हें पूर्ण तरीके से वे उनकी क्रेडिबिलिटी को ही खत्म करने का वो प्रयास करेंगे। ये मेरा अनुमान है, आप देख लीजिए। पर अंत में मैं यही कहूँगा कि हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि इस फिल्म को हम सपोर्ट करें। बाकी दोस्तों, अगर आप भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को सपोर्ट करते हैं और आप इस फिल्म को अगर थिएटर में देखने वाले हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने मित्र इस फिल्म को देखने वाले हैं। कम से कम 10,000 लाइक्स तो इस वीडियो को मिलने ही चाहिए, उससे ज़्यादा ही मिलने चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।